ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਦਿਨ, ਹੋਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੋਂ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ 1923 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗਲਪਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ ਬਈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਲ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਈ। ਪੀੜਾ ਮੱਲੇ ਰਾਹ, ਕਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ, ਨੀਲਾ ਗੁਲਾਬ, ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਦਾ ਭਾਈ। ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਹੈ ਬਈ। ਪੀੜਾ ਮੱਲੇ ਰਾਹ, ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਪੀਲਾ ਕਰ ਲਓ ਬਈ, ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਲਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਸੂਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਆ ਗਏ ਬਈ। ਇਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਨੀਲਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੂਹਾ ਭਾਈ, ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਆ ਗਏ ਬਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਪੀੜਾ ਮੱਲੇ ਰਾਹ, ਪੀਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਪੀਲਾ ਮੱਲੇ ਰਾਹ, ਪੀਲਾ, ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਸੂਹਾ, ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਆ ਗਏ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪੀੜਾ ਮੱਲੇ ਰਾਹ, ਨੀਲਾ ਗੁਲਾਬ, ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਦਾ ਤੇ ਕਾਗਾ ਦੇ ਕੰਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਾ ਮੱਲੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕਤਾ ਹੈ ਬਈ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ, ਪ੍ਰੀਤ, ਰੋਮਾਂਸ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ, ਯਥਾਰਥਵਾਦ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆਦਮੀ, ਸਗਨਾ ਭਰੀ ਸਵੇਰ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਛਵੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਵੰਝਲੀ ਤੇ ਵਿਲਕਣੀ, ਸੁੰਦਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਸੂਹਾ ਸਾਲੂ, ਸੂਹਾ ਗੁਲਾਬ, ਕਲਾ ਬੱਦਲ, ਕੂਲੀ ਧੁੱਪ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਔਰਤ ਈਮਾਨ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਦੀ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮਲਵਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ ਦਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਮਲਵਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਵਈ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਲਵਈ ਖਿੱਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਭ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਮਲਵਈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਸੋ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ, ਕੱਪੜਵਾਸ, ਆਸ ਪੱਥਰ, ਪੰਚਨਾਦ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਕਰਕੀਣ, ਤੱਤੀ ਹਵਾ, ਮੌਤ ਦਰ ਮੌਤ, ਅਧੂਰੇ ਖੱਤ ਦੀ ਇਬਾਰਤ, ਬੁਝ ਰਹੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣ,
ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਨੇ ਭਾई। दोबारा फिर मैं कर देना है उच्चारण। सुपने ते संसार, कपड़वास, आस पत्थर, पंचनाद, मिट्टी दा मुल, लोहे लाखे, तांबे दा रंग, करकीण, मौत दर मौत, अधूरे खत दी इबारत, बुझ रही बत्ती दा चानण। हुण जिहड़ा बुझ रही बत्ती दा चानण है, जिहड़ा इह इहदा नावल है बुझ रही बत्ती का चानण, जलंधर दूरदर्शन ने एक लड़ीवार प्रदर्शन किया बई। इस नावल का जलंधर दूरदर्शन के उत्ते प्रदर्शन होया है। गासो की जिहड़ी दृष्टि है वो यथार्थवादी है बई, यथार्थवादी दृष्टिकोण का नावलकार है, यथार्थवाद तो ये संबंधित रहा है। उसकी बोली मलवई मुहावरे नूं भरपूर रूप विच साकार करती है। उस दे नाल संतुलित वृतांत सिरजण का गुण है बई। वृतांत सिरजना बिल्कुल संतुलित तौर पर करता है, जिस करके उसकी नावल समकाली पंजाबी नावल विच विशेष पहचान कायम कर लेंदी है। यह सीगा ओम प्रकाश गासो। संखेप रूप दे विच आपां बई नावलकार हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि सारे ही नावल विस्तार रूप च करांगे तो फिर माइंड की कैपेसिटी है, सिस्टम है, इन्ना सारा सिलेबस है, उसनूं ध्यान में रखते हुए और वेटेज नूं ध्यान च रखते हुए करवाया जा रहा है। जसवंत सिंह विरदी, जसवंत सिंह विरदी है जो मुख्य तौर पर कहानीकार है भाई। इत्थे यथार्थवादी धारा का यह भी किहड़ा है, यथार्थवादी धारा का कहानीकार है। कहानियां भी लिखियां और इसने नावल भी लिखे, पर कहानीकार के तौर पर इनकी प्रसिद्धि वध है। और फिर उन्हें नावलकार लिखे, फिर नावलकार के तौर पर प्रसिद्ध हो गया भाई। उसके नावलों की गल करिए तो उसके नावल ने विखरे विखरे अंदरले दरवाजे, अपने अपने सुख, कंडियां ते तुरना, लहू भिजे वर्के, अद्धी रात, तरकाला, कमेलिए दा फुल। उत्थे चमेलिया कर रखे नोट्स च भाई, उसनों अपडेट करता है। जे थोड़ा बहुत जिथे भी अपने नोट्स च थोड़ी बहुत गलती रही है उसनों पूर्ण तौर पर अपडेट कर दिता गया है। हुण जिहड़े आपां नोट्स अपलोड करांगे, अज नावल खत्म होगा, इस तो बाद नोट्स है अपलोड कर देंगे, तो उस तो जरूर तुसी जिहड़ी है अपनियां, जे पहला तुसी प्रिंट ले लिया है तो उसनों जरूर एक बार वेखना है भाई। तो उनके विचों कई जिहड़ियां गलतियां है उनका शुद्धिकरण किया गया है। तो इस कारण की है कि जो छोटी मोटी भी जिहड़ी गलती रह गई सी उन्होंने दूर कर दिता है। तो जरूर तुसी ये ध्यान रखना है। एक बार दोबारा जिन्होंने पहला प्रिंट ले लिया है वो एक बार दोबारा फिर अज मैं अपलोड करूँगा, कल की कहते तुसी मिलायो भाई उस दे नाल, ते वो जिहड़ियां गलतियां ने वो सुधार तुसी कर लियो। चानण लीका, नीचल नाही चीत ते वरखा रात, ये इस दे नावल ने। एक बार होर मैं दोहरा देना है। विखरे विखरे अंदरले दरवाजे, अपने अपने सुख, कंडियां ते तुरना, लहू भिजे वर्के, महक नूं ना मारो, अद्धी रात, तरकाला, कमेलिए दा फुल, चानण लीका, नीचल नाही चीत, वरखा रात। जसवंत सिंह विरदी ने आ नावल रचे है और वो यथार्थवादी धारा का नावलकार है। वो अपने समुचे कथा संदर्भां, वृतांतक वेरियां, किरदारां, भाषा प्रयोगां नूं यथार्थक तौर पर पेश करता है। उस तो अगे आप चलते हैं भाई। इस जसवंत सिंह विरदी दे कहानीकार के तौर पर भी यह जानिया जाता है भाई। ते इहदे कुछ कहानी संग्रह ने जिहड़े प्रमुख, उन्हां दे नाम मैं मुखारबिंद तो उच्चारित कर दवां भाई। पीड़ पराई, अपनी अपनी सीमा, गम दा साक, पावर हाउस, नुक्कर वाली गली,
जिंदगी नदी दा पानी, शीश भेट, सड़कों का दर्द, खून दे हस्ताक्षर, बदतमीज लोक, खुले आकाश विच, रथ दे पहिए, अद्धी सदी का फर्क, हम वतनी तपदी मिट्टी। आ इस दे कहानी संग्रह ने तुहाडे नोट्स दे अंदर मिल जाणगे भाई। दोबारा फिर दोहरा देना है। पीड़ पराई, अपनी अपनी सीमा, गम दा साक, पावर हाउस, नुक्कर वाली गली, जिंदगी नदी दा पानी, सीस भेट, सड़कों का दर्द, खून दे हस्ताक्षर, बदतमीज लोक, खुले आकाश विच, मेरियां प्रतिनिध कहानियां, रथ दे पहिए, अद्धी सदी का फर्क, मेरियां श्रेष्ठ कहानियां, हम वतनी तपदी मिट्टी। आ की कहंदे ने सीगा जसवंत सिंह वर्दी पई। हुण आपां गल करिए बूटा सिंह साध दी पई। बूटा सिंह साध पंजाबी दे वधेरे आलोचक अते विद्वानां दी नज़र विच वो बाजारू सुभाਅ दी बरतंत सिरजना करता है, जिहड़ी बाजार दे विच मार्केट विच ज़्यादा चलदी है। बाजारू सुभाਅ दी बरतंत सिरजना करने वाला नावलकार है, पर पाठकों की सोच अनुसार वह मालवे की जिंदगी की असलीयत नूं तितार के सामने रखता है। तो इत्थे एक शब्द अगर मैं लिख देवां मालवा, तो बड़ा जरूरी होवेगा भाई। मालवा मतलब मलवई सभ्याचार, मलवई खिते होर मालवे की जिंदगी की असलीयत नूं नितार के रख देने वाला नावलकार। उनके नावल ने जेड़े अद्धी रात पहर दा तड़का, कुत्तियां वाले सरदार, रोही दा फुल, मेरी मेहंदी दा रंग उदास, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, मौलाना अवधी दी बहुत प्यारी रचना है भाई। उन्हें लिखी है मौलाना अवधी दी, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। ते इस तुक नूं तां हर कोई जानता है, पर मौलाना अवधी नूं कोई नहीं जानता। बाज भरावां सकिया, बंजर धरती टहकदा फुल, पापी पाप कमाउंदे, तेरा किया मीठा लागे, धरती धक सिंह नूरी इश्क, रूह दे हानी सिख खालसा। ये बूटा सिंह साध दे नावल ने पई। एक बार होर मैं उच्चारण कर देना है। अद्धी रात पहर दा तड़का, कुत्तियां वाले सरदार, रोही दा फुल, मेरी मेहंदी दा रंग उदास, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, बाज भरावां सकिया, बंजर धरती टहकदा फुल, रातां कालियां कली नूं डर आवे, मुल विकदा सज्जन, पापी पाप कमाउंदे, लाली तेरा किया मीठा लागे, धरती धक सिंह नूरी इश्क, रूह दे हानी सिख हीरो खालसा। ये इस दे नावल ने। बूटा सिंह दे नावलों विच रोमांस भी है, हिंसा भी है, ते सरगर्म मनुखी व्यवहार का चित्रण कथा की उसारी विच विशेष भूमिका निभाउंदा है भाई। रोमांस, हिंसा ते सरगर्म मनुखी व्यवहार इस दे नावलों विच वेखण नूं मिलदा है। इस करके वह उत्तेजित मानवी स्थितियों का चित्रण करने वाला माहर नावलकार है। सरगर्म मनुखी व्यवहार की अगर गल कर लीए तो की हो गया, उत्तेजित जिहड़ियां मानवी व्यवहार है उन्होंने वो चित्रण करता है भाई। भावें उसकी प्रतीकात्मक कथा सिरजण अपने पात्रां, कहानी और बरतांत संदर्भां की प्रभावशाली पेशकारी करती है। देखो प्रतीक वरते ना, कुत्तियां वाले सरदार प्रतीक है, मेरी मेहंदी का रंग उदास, दिल दरिया समुद्रों डूंगे। प्रतीकात्मक कथा सिरजण अपने पात्र, कहानी, वृतांत संदर्भां विच प्रभावशाली बना दिंदा है भाई उसनूं। पंजाबी नावल दे विचारवान उसनूं उत्तेजनावां दी बेबाकी नाल पेशकारी के संदर्भ विच रख के पॉपुलर गल्प की कोटी विच शामिल कर लेंदे ने। भाई वो की है, उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित मानवी व्यवहार नूं
करता। जिवें अपने आसे पासे अपने जुड़े हुए कई लोग होणगे, जिवें ही आपां कोई गल करते हैं उवें ही भज के पै जाते, कहते नहीं इदा नहीं आए ओ माहौल का एक क्रिएट कर देंगे आ भाई। तो उस तरीके के लोगों का चित्रण है जो इसने किया है। और कई लोग की है कि बहुत वड्डी भी गल हो जाती है तो बड़े ही शांतमई तरीके नाल, बड़े ही प्यार के ढंग नाल वो उसनों बयान करते हैं। और कई एकदम ही उत्तेजित हो जाते हैं, सरगर्म हो जाते हैं और बस वो फटे च टंग दे देंगे आ भैया, कई बार दे देंगे। सरदारां की आदत होती है तो वो इस कारण है भाई हर एक का यानी कि दुख महसूस करते हैं कि भाई अपन अगे बढ़ के थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा लड़ाई हो रही है, दंगा हो रहा है, जिथे भी आपने कोशिश करो कि रोके रुके। इस तरीके की सोच है, वैसे चंगी भी सोच है, कोई गल नहीं है, और इस कारण जाने भी जाते हैं सरदार लोग। अगला जो नावलकार है वह है जसवीर भुल्लर। कहानीकार के तौर पर जाने जाता है भाई, कमाल का कहानीकार है और इन्हें बहुत सारिया कहानियां लिखी हैं। जेडे लोग कहानी लिखते हैं ना वो नावल भी लिख सकते हैं, पर जेडे लोग कहानी ते नावल लिखते हैं ना वो कविता लिखते हैं बहुत घट होंगे, अमृता प्रीतम वर्गे, ठीक है, बहुत घट। कहानीकार गल्पकार है, गल्पकार गल्प के अंदर कहानी ते नावल आंदा है। जेड़ा कहानी लिख सकता है वो बंदा नावल भी लिख सकता है, परंतु जेड़ा गल्पकार है वो कवि होवे बहुत घट, बहुत घट। जसबीर सिंह भुल्लर मुख्य रूप में कहानीकार होने करके उसदे नाल संकेतक अते संक्षिप्त नावली वृतांतक सिरजदा है वो, क्योंकि वो कहानीकार है। तो कहानी की होंदी है छोटी होंदी है भाई, और नावल की होंदा है उपन्यास वड्डा होंदा है। तो जसवीर सिंह भुल्लर है एक ये नावलेट छोटे नावल सिरजण दे विच माहर है। इस विच महाकावक नावलों वांग वडेरे वृतांतक संदर्भ पेश नहीं हुए, फिर भी कथा सिरजण की संतुलित रचना दृष्टि और दिलकश वृतांतक संदर्भ सिरजण की दृष्टि तो उसके नावल विशेष ध्यान खिंचते हैं। हुण जसवीर भुल्लर के नावलों की खासियत है, जसवीर भुल्लर मुख्य तौर पर कहानीकार है, उन्हें बहुत सारे कहानी संग्रह लिखे है भाई, परंतु उसने नावल भी लिखे, तो नावल भी लिखे तो उन्हें छोटे नावल लिखे है भाई, बहुत बड़े महानावल टाइप के उन्हें नावल नहीं लिखे, थोड़े छोटे नावल उन्हें लिखे है, परंतु फिर भी उस रंग जमान च कामयाब रहा है। जसवीर भुल्लर के नावलों की गल करते हैं भाई, जरीना, चाबी वाले खडौने, नंगे पहाड़ की मौत, चिट्टी गुफा ते मौलसरी, चिट्टी गुफा ते मौलसरी, पाताल दे गिठ मुठिए, मोहरत ते खिदो भाई, खिदो आ एंदे नावल ने। जरीना, चाबी वाले खडौने, नंगे पहाड़ की मौत, चिट्टी गुफा ते मौलसरी, पाताल दे गिठ मुठिए, पाताल वाले छोटे छोटे लोग उन्हों की गल, खिदो, मोहरत आ दोस्ते नावल ने भाई। ऐसी जसवीर सिंह भुल्लर कहानीकार के तौर पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो मैं इस कारण के नावल भी पाते भाई, नावल भी इनके कीमता पुछ लिया। अगला डॉक्टर सिंदर। हम डॉक्टर सिंदर की चर्चा किस कारण की, गंगानगर तो संबंधित बंदा है भाई, गंगानगर अबोर एरिए का, इस एरिए के इस खिते के प्रभाव हैगा है, तो इनके नावल विचों कुछ पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर सिंदर की इत्थे गल की है। सिंदर की नावल रचना में मुख्य तौर पर ਜਿਹੜੇ उनके नावल ने निम दा दरखत, गुलमोहर दे फुल, स्टोन किस, आंटी दा घर, सूरजमुखी उदास है, उत्थे है कौन, मौसमा दी खामोशी, अम्मी जाए, अपना अपना दर्द, अपना अपना दर्द, यह सी डॉक्टर सिंदर। डॉक्टर सिंदर के जोड़े नावल ने निम दा दरखत, गुल मोहर दा फुल, मतलब सारे देखो बूटे दरख्तों की गल की है, निम दा दरखत हो गया, हुण फुल की गल की,
गुलमोहर दा फुल, फिर उन्हें सूरजमुखी, सूरजमुखी भी फुल देखा होना, सूरजमुखी का तेल निकलता बूटा तुसीं वेख्या होना, सूरजमुखी उदास है। फिर मौसमां दी गल, मौसमां दी खामोशी। एंदा डॉक्टर सिद्धर दे अगर नावलों के बारे देखा जाए तो देखो, निम दे दरखत, गुलमोहर दा फुल, सूरजमुखी उदास है, मौसमां दी खामोशी। ये हो गए भाई 4 नावल आपां नूं याद। बाकी जिहड़ा रह गए वो है आंटी दा घर, अपना अपना दर्द ते स्टोन किस। ये आउंदे नावल ने। डॉक्टर सिंदर सी जिहड़ा मुख रूप च कवि सी पई, जिस करके उसने नावलों की बिरतांत सिरजना की। और इहदी नावलों की बिरतांत सिरजना के अंदर अगर वेख्या जाए, क्योंकि मैं डॉक्टर सिंदर दे जदों आपां कविता की सी उदों इहदे काव रचनावां ने वो भी लिखाइयां सी पई, और इस बारे थोड़ा दसिया भी सी तुहानूं। डॉक्टर सिंदर है कवि भी है, नावलकार भी है। हुण कवि अगर नावल लिखूगा, कवि अगर नावल लिखूगा तो पता की गल होगी, उनके नावलकारी के अंदर, उनके गल्पकारी के अंदर जी लाइना वो लिखता है उन्हें पोइम मिलेगी, तुहानूं कावक शैली होगी, उनकी कविता वाली शैली होगी उनके नावलों के अंदर भी। तो वह जो नावल लिखता है तो काव संवेदना और कावक शैली